Namaskar. Welcome back to the Karmyogi talks that we have been having every week. As you're all aware, Indian knowledge systems of the Bharatiya Gyan Parampara is a very important foundation for us at Mission Karmyogi. And we try to have as many discussions on this topic as possible from people who are not just experts in talking about it, but people who have dedicated their lives and lived this experience in different ways. For many people, Bharatiya Gyan Parampara might sound romantic. But for many of us who've been in the space, it's something where we can apply it every day, even today. For us at Mission Karma Yogi, we believe that if you don't learn from your past, from the civilizational wisdom that India is rich with, you'll never be able to craft a great future. So, building a Vikasit Bharat means building it on this solid foundation, which can be an example not just to all of us here, but for the rest of the world also. Today, for this discussion, we have somebody special. We have Sri Atul Jainji, who is not just a good friend, but somebody who has had enormous experience in the world of social sector development, using many of these principles. He's had a very varied professional experience in his life. He's been a journalist, he's a researcher, he's been a media consultant. He's also advised the Chief Minister of Madhya Pradesh in one of his many roles that he has placed. More importantly, he is the Vice President of the Deen Dayal Research Institute, and his work in the Chitrakoot area is well known across the country. Now, you have done so much. You have been with the Khadi and Village Industries Commission. You have imbibed the philosophy of Nanaji Deshmukhji. There's so much that you have done, and you articulate very well these ideas both in Hindi and English. So my request to you is आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, दोनों को मिला के भी बात कर सकते हैं. This Karmyogi Talk series is watched mostly by our civil servants across India. Not only that, now we also host it on our YouTube channel where everybody across India can see. So this is something we are trying to institutionalize in a sense that when you take pride in civilizational wisdom and you apply it in everyday life, you can be a real change maker today. Now, I know a lot, your work spans a lot of areas, but I'm going today to restrict myself to talking about how it impacts lives in villages and cities from the perspective of cleanliness, because we just had the Swachhata Awards recently announced. So the government of India has got a very large program. It's a flagship program which the Prime Minister is very attached to, and he believes India should be one of the cleanest countries in the world. And so for me, I would like to understand from you, beyond just cleanliness as a very necessary thing from the health and hygiene perspective, the call given by the Honorable PM is also about Atmanirbhar and how self-reliance could be achieved through this concept of cleanliness, hygiene, and the indigenous wisdom. And India's knowledge is so rich in Shaucha, and whether it's Patanjali's Yoga Sutras or Yama, Niyama, and all that we can talk about. How do you actually weave this into the physical, intellectual, I would say emotional and practical cleanliness that we can consider into everyday village life? What would your thoughts be on that, Atulji? And more importantly, welcome and thank you for joining us on this Namaskar. Karmyogi I, Talk series. I must thank you for giving me this honor of talking to the civil servants here. Uh, the subject that I will be talking about today is a little weird. That's why a kind of a caveat, a disclaimer that I want to give in the beginning. And that is that I'm not advocating the practices that I would be talking about. These are just examples of what our people have been doing in their past, learning from their ancestors, learning from their elders, and learning very, very subtly, very, very silently, without they being told in these many terms that this thing you have to learn. So these things have permeated, in fact, as the cultural practices that we call. These are the cultural practices. These are ingrained in the day-to-day chores of the people, day-to-day, the manners that they have got, the kind of worshipping, the pujas that they are performing at home or elsewhere in the community, or even otherwise, it's not necessarily the puja, the rituals that they are undertaking, performing, the festivals that they are celebrating at different times of the year, in different fields, in different areas that they are doing.
So these are certain things that I would like to tell by giving certain examples how our society has been doing all these things. And in the course of doing this thing, as I told you earlier also, कि इसमें हिंदी में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है आर्टिकुलेट हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आइदर हिंदी और द रीजनल लैंग्वेजेस में होती हैं। मेरे लिए हिंदी क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल रह गया है, मैं रीजनल लैंग्वेजेस में जाए तो फिर राजस्थानी हो जाती है और वो बहुत कंटेंट रह जाती है, उसका कोई खास वो नहीं रहता है। तो मैं उन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा एक बार पीछे की तरफ ले जाना चाहूँगा अपने पास्ट में, मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं। हम लोग बहुत चीज़ों में महसूस करते होंगे और जो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो कुछ बहुत नया आपको शायद नहीं लगेगा। आपको लगेगा हाँ, ये तो मेरे घर में भी होता था। यस, माय मदर आल्सो यूज्ड टू टेल मी लाइक दैट। शी वुड माइंड मी कि अगर मैंने झाड़ू को पैर लगा दिया, गलती से भी टच हो गई तो मुझे डाँट दिया जाएगा, या मैं उसको जंप करके जाऊँगा तो मुझे डाँट दिया जाएगा। इस जनरेशन को बड़ा वियर्ड सा लग सकता है कि ये फालतू की बात है। कई लोगों के लिए झाड़ू में बी अ लिटिल वेरी सच एन ऑब्जेक्ट कि जिसको आप इस तरीके की रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसका कोई बड़ा अजीब सा लगेगा उसको। हो सकता है उसके लिए एक वैक्यूम क्लीनर हो, उसके लिए मॉपर आ गया हो, अब तो रोबोटिक वो भी वैक्यूम क्लीनर्स भी हो गए, तो झाड़ू उसके लिए बिल्कुल एक आउटडेटेड ऑब्जेक्ट हो गया है। लेकिन जब वो उसको ध्यान आता है, अगर वो बिहार का रहने वाला है या वो राजस्थान का या मध्य प्रदेश, इवन इन कर्नाटका एंड केरला ऑल्सो दीज प्रैक्टिसेस आर देयर, कि ब्रूम इज वर्शिप्ड जस्ट बिफोर दिवाली और आफ्टर दिवाली, इमीडिएटली आफ्टर दिवाली। धनतेरस दिवाली से 3 दिन पहले का एक फेस्टिवल होता है। धनतेरस में प्रॉस्पेरिटी के नाम पर हम लोग कुछ खरीदारी करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उस दिन झाड़ू क्यों खरीदी जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। उसके पीछे की फिलॉसफी है, एंड इट्स अ वेरी वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग। एक पर्टिकुलर चीज पर इसमें क्लीनलीनेस है, हाइजीन है, सैनिटेशन है, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन झाड़ू की फिलॉसफी क्या है? झाड़ू की फिलॉसफी ये है कि झाड़ू क्लीनलीनेस के लिए उस समय तो एक वही अकेला टूल, एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करती थी व्हेन दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें ये आता रहा कि क्लीनलीनेस लीड्स टू गुड हेल्थ और जीरो डिजीज दैट वी वर्क अपॉन इन चित्रकूट ऑल्सो। हम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव है जीरो डिजीज। तो क्लीनलीनेस उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पहले। फिर जब हम लोगों की अच्छी हेल्थ है तो हमारी एफिशिएंसी काम करने की बढ़ती है। जब हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, हमारा एम्बियंस भी साफ सुथरा रहता है, तो काम और करने के मन में आती है, एंड दैट ब्रिंग्स इन प्रॉस्पेरिटी। दैट इज वेयर लक्ष्मी कम्स इन। तो लक्ष्मी को हम लोग ये मानकर चलें कि किसी हम गॉडेस की पूजा कर रहे हैं झाड़ू का, वो नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी वेरी सिंबॉलिक दैट वे। वो झाड़ू की पूजा करते करते उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स और जुड़ते थे। वो एस्पेक्ट्स जुड़ते थे कि ये जो झाड़ू बनती थी, कैसे बनती थी? उस समय कॉटेज इंडस्ट्री की भी जरूरत नहीं थी, हर घर में ही बनती थी, अपने यूज के लिए बनती थी। तो हम जिस पर बात करते हैं वो स्वावलंबन की जो हुआ, वो भी एक एस्पेक्ट उसमें कवर हो जाता था बड़े सेटल मैनर में। उसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता था। और जब ये होता था तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेस को ही, हम नेचुरल प्लांट्स को प्लग किया, उसकी सीजनिंग करी, कौन सी झाड़ू की कहाँ कब जरूरत है, आउटडोर के लिए कौन सी जरूरत है, इंडोर के लिए कौन सी जरूरत है, किस सीजन में किस तरीके की जरूरत है, कौन सी रीजन में किस तरीके की जरूरत है। थोड़ा सा वेट ह्यूमिड रीजन है तो वहाँ, राजस्थान का ड्राई रीजन है तो वहाँ पे कौन सी झाड़ू की जरूरत है। इस तरीके की जो चीजें हुआ करती थी, उसमें वो सब लोग इकट्ठे बैठते थे। सब लोग दोपहर में बैठेंगे, महिलाएं इन पर्टिकुलर, दे वुड सिट टुगेदर, सिंग सम सॉन्ग ऑल्सो, और वो उसको ब्लेड्स को निकालती रहेंगी अलग अलग। कोई उसको लेकर आता है, उसको फिर बांधेगा, सब कुछ कर देंगे। बच्चे भी इसमें खेल खेल में जुड़ जाएंगे, और वो खेलते खेलते सीखते चले जाते हैं कि मेरी माँ कैसे इस झाड़ू को बना रही है या मेरी दादी कैसे कर रही है। ये कुछ इस तरीके की चीजें थी जो हमारे लिए एक इमोशनल, हमारे मतलब उसको हम आत्मसात कर सकते थे, हम उसको इंटरनलाइज कर लेते थे, हमको पता भी नहीं लगता था कैसे हुआ ये।
तो हमारे बहुत सारे रिचुअल्स जो थे वो झाड़ू के लिए, केरल में एक मलयालम जो ईयर जब एंड होता है तो वहाँ एक फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ थिंग होती है, उसको बोलते हैं आती अरूपी, ऐसा करके। उसमें क्या है, उसमें कहते हैं कि वी आर थ्रोइंग अवे द इवल स्पिरिट्स। अब इवल स्पिरिट्स अपन को सुनने में आज लगेगा कि ओके वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइजिंग समथिंग, हम उसको घोस्ट वगैरह, वो ऐसा नहीं होता था, उसका बिल्कुल नहीं था, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज देयर। वो कहते थे कि हम मूदेवी को भगा रहे हैं, मतलब जो खराब ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, तो उसमें से एक बंडल बना, उसमें उनकी जितना भी जंक हुआ है सारा का सारा, दे वुड बी थ्रोइंग इट आउट। उसके साथ झाड़ू भी जाएगी जो लास्ट ईयर यूज हुई है, लास्ट सीजन में यूज हुई है, बट उसके जाने से पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी पूजा होगी, सफाई होगी, और फिर देन इट विल बी बंडल्ड इन दैट बंडल, और उसको फिर इकट्ठा बहुत सम्मान के साथ में उसको भी दिया जाएगा। फिर वो एक श्री वो थी होगा कि अच्छी स्पिरिट्स हमारे साथ में आए, क्लीनलीनेस हमारे यहाँ आए, इसका मतलब सारा आपने जंक भगा दिया है सारा का सारा। सो ऐसी की सारी प्रथाएं जितनी हैं, ऐसे कस्टम्स हैं, ऐसे ट्रेडिशंस हैं, पूरे देश में जहां हम लोगों ने स्टडी किया, वहां पर इतने अच्छे अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। और हर जगह एक चीज देखने में ये समझ आती है कि लोगों को इस चीज का कई बार आइडिया नहीं होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस वो कर रहे हैं, दैट्स ऑल। सो दैट इज द कल्चरल प्रैक्टिस, So दैट इज। wonderful. I think you have brought in so many things here. एक तो कम्युनिटी का जो साथ में बैठकर इसके बारे, though they were making the statues, and then you spoke about the emotional attachment, you spoke about the physical requirement for cleanliness, the economic impact of how prosperity can be linked to this. You know, एक कहावत भी है कि cleanliness is next to godliness. हमारे संस्कृति में तो we are living it. And so in rural India also you would have seen this, how they give importance to this. So to me, I think we normally believe that जो गांव में रहते हैं, we think they are poor, they are backward. And we have this urban bias thinking that we are very progressive and modern in urban areas. And that actually is a limitation for us to learn from rural India. इतना knowledge या practical wisdom है. And I'm sure even in cleanliness, and like you said, in today's world of this robo cleaners and moppers, but deep down, the paradigm that you spoke about, I do understand that you explained that वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस के पीछे जो प्रिंसिपल्स था, पैराडाइम्स था, इतना कॉम्प्रिहेंसिव भी था। सिटीज में जो रहते हैं क्या सीख सकते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज इन दीज एस्पेक्ट्स, यू नो, सम वेरी एसेंशियल सिंपल थिंग्स लाइक दिस। सिटीज में रहने के लिए इसको फिलोसफिकली तो समझा जा सकता है। एक थोड़ी से इश्यूज आए हैं, सिटीज की रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई हैं। सिटीज में हम लोग आजकल सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का जैसे देखते हैं। सो एवरीवेयर वी गो, एट इन द रेलवे स्टेशन और ऑन द एयरपोर्ट और एनीवेयर एल्स, इवन ऑन द रोड साइड, there are at least two types of that trash bins would be there. One would be green, other would be blue, for segregation of waste. कि एक में wet waste डालना है, one is for the dry that we have to put in. What we can learn from our past is that there was such a wonderful that a tradition which still is prevalent in the country, across the country. It's by different names. मैं आपको उसका एक राजस्थान का नाम बताता हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू दैट प्लेस, और वो नाम बिल्कुल वही नाम बुंदेलखंड में भी है। उसका नाम है घूरा। घूरा इज बेसिकली अ हीप ऑफ वेट वेस्ट। इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। आउटस्कर्ट्स में इसलिए है कि वन दैट पर्टिकुलर स्पेस इज ईयरमार्क्ड बाय द कम्युनिटी, because you said ki community is very important aspect, so community will say ki okay, we are earmarking this particular space for ghura, and every household will throw its wet waste in that ghura. अब वो घूरा का एक हीप बनता चला जाता है। इट्स अ हीप ऑफ वेट वेस्ट बेसिकली। इट इज supposed to decompose in 6 to 9 months. In dry areas it will decompose in 9 months. In the wet areas where humidity is more and it's sometimes it's rather warm also, वहाँ थोड़ा सा डिकम्पोजिशन उसका जल्दी हो जाता है। इट टर्न्स इनटू अ मैन्योर। लेकिन मैन्योर में टर्न करने के लिए घूरे को क्या करना होता है? इट हैज टू बी स्टर्ड ऑल्सो एट रेगुलर इंटरवल्स। सो उसमें कम्युनिटी का एक रोल आता है। एवरी हाउस होल्ड इज असाइंड वन पर्टिकुलर डे और in a week, a day in a week,
where they are supposed to go and stir a part of it, घूरा, कि आज आपको इसको घूरा को हिलाना है, ठीक करना है, और उसको स्टर करके फिर उसको दोबारा कवर करना है, फिर उसका मल्चिंग करके रखना है, सो दैट उसमें से अंशा आता रहे। उसमें से जो घर में से गोबर बच रहा है, वो उसको भी वहां डाल को भी वहां डालना है, उसको फिर दोबारा डालना है। somebody else will be assigned with the duty of sprinkling water also on it, because उसका भी बहुत जरूरत होगी करने के बाद में। वो हो गया। अब उसके प्रति किस तरीके से हम लोग, एक हमारी भावना आनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन उसके प्रति किस तरीके से होना चाहिए। सो अभी पूरे देश में एक परंपरा है, उसको डिफरेंट तरीके से वो लोग निभाते हैं। जब कोई ये गांवों में आज है, हमको शहर वाले लोगों को बताना है कि देखिए वो कितनी इस चीज के प्रति अवेयर हैं, वो कैसे करते हैं, आप अपने तरीके से कीजिए। यू एटलीस्ट डू योर बिट, यू एटलीस्ट पुट इट इन द दैट गार्बेज बिन जो विच इज ये मार्क फॉर इट। तो वो क्या करते हैं, वहां आकर जब न्यूली वेड ग्रूम आएगा तो अपनी ब्राइड को कहेगा, वहां उसके पास घूरे के पास ले जाके उस पर पूजा करेगा। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो साउथ में उस पे हल्दी से सातिया बनाया जाएगा बाकायदा, कि इतना सीक्रेट है ये घूरा, इज सो सीक्रेट। उस पे वो उसमें से एक पाम फूल निकालेगा ऐसे एंड हैंड इट ओवर टू हिज ब्राइड न्यूली वेड, और वो भी नॉर्मली आसपास के एरिया से आती है, उसको पता होता है क्या। एंड देन ही विल से कि अब से इस गांव की सफाई, इस गांव का स्वास्थ्य और इस गांव की समृद्धि मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। सो नाउ इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर to रिस्पॉन्स share responsibility. So now you will be sharing this responsibility, and you know very well, or if you don't know, you must learn it, that now onwards, whatever wet waste is to be thrown, it has to come to the Ghobra. How will it come? A segregation of waste has been in practice in our villages for centuries. And this is being celebrated also. Not only it is being respected, honored, this tradition, it is being celebrated also, that कि कितना important है जब आ रहे हैं, and it is so sacred कि उसके ऊपर आकर सातिया बनाना, उसके ऊपर ऐसा sacred चिन्ह बनाना, ये इतनी important चीज है। फिर इसमें दोबारा community feeling, कि उसमें एक हाउस होल्ड्स की हर फैमिली का असाइनमेंट होना कि आपको इसको स्टर करना है, यू हैव टू स्प्रिंकल वाटर, यू हैव टू मंच इट, मल्चिंग करना है, कैसे कैसे सबके अलग अलग रोल्स असाइंड हैं, सबके सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड है। एंड हु असाइंस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? विलेजर्स देमसेल्व्स टुगेदर विल डू इट। तो वो सब मिलकर इस तरीके की जो हमारी चीजें हैं, so we need to learn with शहर वालाज need to learn from our villagers whom we say कि are illiterate, they indeed are not, or they are much more knowledgeable and wise. Sometimes I still remember living in the forest with the villagers. Karnataka also had this concept. We'd call it tippe gundis or gobra. We'd call it gobra there after it decomposes. And the community was responsible. It was one big pit. I would always wonder, when they take it up and put it in the fields, how will they share it? And it was so wonderful. The chieftain would stand there and say, you take this much, you take this much, based on the amount of land they had. It was so equitable. And there's no fight about I'll take more, you take less. I also put into it. So I think very well explained by you. Community concept of trying to come together. Our RWS can learn a lot about this. How do we do it together? And how do you participate? How do you recycle together? How do you reuse stuff together? The principles of communitization, which we can learn from rural India. Today we have in cities, we have ward sabhas. Getting people to participate in a ward sabha is so challenging. But you call a gram sabha in a village, the chances are at least 50-60% of the people will be there. So how do we learn this process, not just cleanliness, but this idea of community ownership over cleanliness itself? It's something which I realize that the way you explain, we have a lot to learn from our rural brethren. We have also been talking about, we have such wonderful examples, whether it's Ayurveda or whether it's Vastu sciences or the village customs. Would you be able to share some where personal hygiene can be accommodated? Some examples that, because we only talk of Ayurveda as medicine. Ayurveda is such an integral concept of wellness and how so much is connected to it. And cleanliness is an inseparable part of health. And how in the very understanding of Ayurveda so much is embedded. Any thoughts on that? Yes, very much sir, thank you. जो ये आयुर्वेदा का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें पर्सनल हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
very important factor. Because in Ayurveda, what we were told, these villagers will tell us, even now, when we see them practicing it. We are working in that area of Chitrakoot. It is surrounded by forest land. It is surrounded by hills. This Vindhyas hai sara वहाँ पे. So these villagers, they know so well about the herbs. So when they go to pluck those herbs for some particular things, so what they will do? First they will take bath. और बाथ भी बड़ा सेरेमोनियल बात होता है, किस तरीके से होना है. Bath में the kind of oil, the kind of other herbs they would be Adding. mixing first, because when they are going to touch those herbs, उनका पहले होता है कि वो कहीं हमसे गलती से अपवित्र ना हो जाए. अब उनके लिए अपवित्र का मतलब अपवित्र है, बट इट इज बेसिकली अबाउट कंटेमिनेशन, कि दोज शुड नॉट गेट कंटेमिनेटेड. तो हमको कोई चीज टच करनी है, आज तो हम सैनिटाइजर का लगाएंगे और करेंगे, ग्लोव्स पहनते हैं. देंगे ग्लव्स. वहां जाके देखेंगे वो उसको ग्लव्स को बड़ा नुकसानदेह मानते हैं. विलेजर्स टेल कि ग्लव्स एक बार पहनने के बाद आइदर यू थ्रो इट तो ठीक है, मगर अगर आपने थ्रो नहीं किया तो उस पर ज्यादा जर्म्स और बढ़ते चले जा रहे हैं. सो दे अवॉइड इट. वो कहते हैं कि नहीं, हम हाथ को करेंगे और हम मिट्टी से पहुंचेंगे, तो वहीं की मिट्टी ले लेंगे, फिर उसको दोबारा लेकर उससे पहुंच देंगे. सो अगेन क्लीनलीनेस, personal hygiene while doing all these exercises. So it begins right from there, from while they are plucking the herbs. So उसको पहले उनको आइडेंटिफाई करना, सिलेक्ट करना, फिर उसमें से प्लक करना, फिर उसमें से एक उसका अलग विषय है, हम लोग आज उस पर नहीं जाएंगे कि कौन से सीजन में करना है, विच पार्ट इज टू बी डन व्हेन एंड व्हेन नॉट टू बी डन. वो एक अलग पूरा का पूरा आयुर्वेद का सिद्धांत है. बट इसके लिए जो करते हैं, आप तो उसको अच्छे परिचित हैं, अभ्यंग स्नान. अभ्यंग स्नान अपने यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट परंपरा रही है, और विंध्यास के उस तरफ तो उसको अभ्यंग स्नान ज्यादा जानते हैं. यहाँ बस सिंपल स्नान करना एक ऐसा माना जाता है विंध्यास के दिस टाइप ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कंट्री. स्नान की परंपराओं में बहुत सारी चीजों को कैसे जोड़ा गया. स्नान की परंपराओं में उसमें अगेन आयुर्वेद के साथ साथ में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. सो व्हेन वी टॉक ऑफ दोस एरियाज व्हिच आर स्कार्स इन वाटर, वहां पर पानी को कैसे इस्तेमाल करना है, तो स्नान कैसे करना है, कितना करना है, विच पार्ट इज टू बी वॉश्ड विच डे. हमारे पास ज्यादा नहीं है तो उनको कैसे करना है, उसको उसके सब कुछ सिखाते थे. तो फोक सॉन्ग्स के जरिए सिखाया जाता. बाल राजस्थान में जैसलमेर एरिया में महिलाओं का लंबे लंबे बाल हैं. अब वो उनको बाल धोना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी है, उसमें से पसीना आएगा, स्वेटिंग हो रही है, तो बाल बार बार धोना चाहिए, पानी नहीं है. वो डू दे डू. तो उसके लिए उन्होंने बड़ा सुंदर करा कि पर्सनल हाइजीन के लिए उन्होंने फोक सॉन्ग्स, फोक लोर्स बनाए. और हाँ, उसको बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि आप अगर मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ आ रही है ये महिला, शी शुड नो कि हाउ टू डू इट, अपनी ब्रेड को किस तरीके से उसको वीव करना है, सो दैट शी डजंट हैव टू डू इट रिपीटेडली एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 years अंटिल इट रेन्स मिक्स. पहले 3 साल में एक बार हो जाती थी, बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं है, 3 साल तक नहीं होती थी रेन्स. तो उसमें से 3 साल बस, फिर उसमें से कभी किसी किस्म का कोई बात नहीं होगी, इसकी चिंता भी करते. तो उसकी प्रैक्टिसेस होती थी पूरी. अब इसको सीखने का हुआ तो देन दे गो बैक टू देयर पुराणों में जाकर देखते हैं. तो सीता मैया जब वनवास पे गई फॉर 14 years, तो 14 years के लिए उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी कि 14 years तक वो कैसे करेंगी अपनी, उनको छोटी वगैरह कौन करेगा, कैसे करेगा. सो व्हेन शी रीच्ड चित्रकूट, तो वहाँ अनुसुईया मैया के आश्रम में गई, और वह वहाँ जाकर हुआ तो अनुसुईया माता ने उनके बालों को गूथा, इस तरीके से कहा कि अब 14 वर्ष तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कि यू विल बी. वो परंपराएं जो हैं उस पूरे एरिया में आज भी उस तरीके से निभाई जाती हैं. अब ऑफ कोर्स पानी की कोई कमी नहीं है, नाउ पीपल वुड वॉश देयर हैंड्स एंड सब हेयर आल्सो, नो इश्यूज विद दैट. बट ये परंपराओं में उनको होता है कि नहीं नहीं, हमको पानी को वेस्ट नहीं करना है. पानी वेस्ट नहीं करना है तो उसके साथ साथ में हमको पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करना है. तो कैसे करना है, उसमें फिर पानी को और क्लेanलीनेस एंड डीसिल्टिंग टुगेदर,
अगेन एज आई सेड इन द बिगनिंग कि बड़ा एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। होलिस्टिक इसलिए होता है कि जो पॉन्ड्स हैं, बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं, उसकी एनुअल डिसिल्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर उसका वाटर लेवल उसमें से स्टोरेज बहुत कम होता है। कम होती चली जाती। तो डिसिल्टिंग होती है। जब डिसिल्टिंग होती है तो उसमें से जो नीचे से सिल्ट निकल के आता है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। कभी किसी और चीज़ में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। हमारा जो न्यूट्रिशन पर कल्चर के बुक है उसमें उसको लेकर एक पूरा का पूरा चैप्टर है कि हाउ इज इट डन। उसमें ये है कि उसमें न्यूट्रिशन भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने कहा उसमें जो सिल्ट निकलती है, फर्स्ट इट इज सच अ गुड मैन्योर कि इट इज स्प्रेड ओवर द आसपास के एटलस के फील्ड्स में जाता है। फिर वो घर की सफाई करने के लिए, घर की प्लास्टरिंग के काम आता है, फिर वो चूल्हे की प्लास्टरिंग के काम आता है, उसकी रिपेयर्स के काम। फिर उसके जब बिल्कुल बहुत अच्छा पेस्ट बचता है तो वो शैम्पू के काम आता है। और वो इतने शाइनिंग शैम्पू रहता है कि आज अब वो बिकने लगा है ईस्टर्न यूपी में। इट इज नाउ बीइंग सोल्ड ऑल्सो, क्योंकि पहले तो लोग अपना अपना आप जाकर निकालते थे, घरों में इस्तेमाल करते थे, उसको संभाल कर रख लेते। अभी कमर्शियलाइज भी हो कमर्शियलाइज भी हो गया। अब वो ईस्टर्न यूपी में और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जाकर बिकता भी है, पैकेट बना के दे दिया जाता है और उसको बेच दिया जाता है। तो वो भी एक क्लीनलीनेस का इतना सुंदर एग्जाम्पल होता था। इन सब चीजों के साथ में क्या चीजें होती थी कि आपको डिसिल्टिंग के लिए पूरी कम्युनिटी इकट्ठी होगी, पूरा विलेज होगा। वो कैसे होगा? उसको मोबिलाइज करने के लिए बच्चों को इकट्ठा करते थे। बच्चे फोक सॉन्ग्स गाते थे और गाते गाते पूरी गलियों में से गुजरते हुए दे विल टेल द विलेजर्स की ऑन दिस पर्टिकुलर डे इस गांव में इसका डिसिल्टिंग, जो भी उसको वो बोलना है उनको बोलते थे। वहां पर अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग रीजन्स में कुएं की सफाई होती तो मध्य प्रदेश में उसको उपसा कहते थे कि भाई उसके लिए पर्टिकुलर डे होता था। डे भी कैसे निश्चित होता था? जिस दिन वाटर लेवल सबसे कम है, तो अपने यहाँ पर जेठ का दशहरा मानते हैं, ज्येष्ठ मास का। तो उस दिन जो 10th डे होता है, इट इज नोन एज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। उस दिन वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला जाता है। उस दिन सफाई होती है सो दैट इट कैन ऑप्टिमाइज ऑल्सो, द डेप्थ कैन बी ऑप्टिमाइज, द डस्ट और डर्ट आसान भी हो जाएगा। सारा का सारा हो जाता है, आसान भी हो जाता है। उस दिन सबको इकट्ठा करते हैं। फिर वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग वो होता है, वहां सब लोग गीत गाते हैं, खेलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। कुछ लोग आसपास के गाना गा के उन लोगों का जोश बढ़ाते रहते हैं, उत्साह बढ़ाते रहते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, दे वुड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग शरबत और पानी सो दैट टू गिव देम रिलीफ इन दैट स्कॉचिंग हीट। वो भी एक उनके साथ में हो जाएगा। फिर बाद में सब मिलकर बैठकर एक कम्युनिटी फीस्ट होगा, सब बैठेंगे और उस दिन करेंगे। गांव के कोई सेठ जी होते थे जिन्होंने उसको बनवाया होता था, ही वुड सेंड सम मनी थ्रू हिज मुनीम जी कि जाओ मेरी तरफ से मिठाई खिला देना, बाकी सब गांव वाले अपने उससे कर लेंगे। तो वो कम्युनिटी की फीलिंग बने रहना, उसकी ओनरशिप मेरी है, दिस बिलोंग्स टू मी, मैं इसको कैसे इसका साफ रखूं, ये सारी चीजें जो हैं वो उसी में से निकल कर आती। ये जो घर बनाते थे, जो वास्तु के बारे में सोचते थे, उसके पीछे भी इस तरह का कुछ सोचता क्या? डेफिनेटली था। पानी का टैंक क्या रहना चाहिए? सिर्फ आजकल तो वैसे ही बात करते हैं। बिल्कुल 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 वो टैंक का, और ये जो होता था कि भाई हमको ईशान कोण उनमें क्या बनाना है, दूसरे कोण में क्या बनाना है, उसमें वास्तु यूज टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे गांवों में आज भी जाकर देखते हैं तो हम लोग इस चीज पर देखते हैं, और वो लोग जमीन पर बैठ जाते हैं, पूरे के पूरे गांव वाले इकट्ठे, एक सेट ऑफ पीपल। उनमें से जो सबसे बड़ा है वो आके बताएगा कि देखो इस तरफ की तरफ में एक स्लोप है, उधर थोड़ा सा अपहिल है, आप पानी को यहाँ से लाएंगे वहां से लाएंगे, तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम शुड बी आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, किस तरीके से हमको बनाना है। उनके पास में ड्रॉ करने के लिए दे विल यूज अ ट्विग, पेड़ का तोड़ेंगे और मिट्टी पर ही, ऐसा नहीं है कि कोई ब्लूप्रिंट बनाने के नीचे बड़े रक्षक उसी पर बनाएंगे। फिर सबसे पूछेंगे कि तुम्हारे घर को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तुम्हारे को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इसमें से ऐसा कर देंगे। तुमने अपना राज के रमैया बोलते हैं, वो लोग तो करते थे। वो तो पहले करते थे। और उसमें एनक्रोचमेंट अगर किसी ने किया था तो उसको सबके सामने डांट पड़ती थी, और उसको कहते थे कि तुम एक तो तोड़ोगे भी अपना एनक्रोचमेंट, बिकॉज आप कैचमेंट एरिया को वो कर रहे एनक्रोच कर रहे हो, और या आप ड्रेनेज सिस्टम को रोक रहे हो। आप पहले देखेंगे कि गांव कितने साफ सुथरे रहते थे,
बिल्कुल आज भी जो है गांव कंपैरेटिवली वो साफ सुथरे एज कम्पेयर टू सिटीज। सिटीज में हमको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इन सब पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ऐसा भी होने लगा है कि गांव में भी डिपेंडेंस बढ़ती तो उसके साथ साथ प्लास्टिक का प्लास्टिक का इन्वेशन हो गया। ज्यादा इन्वेशन हो गया है कि वो चोक करने लग गए हैं उन सब चीजों को। तो वो सब चीजें हैं जहाँ उनको भी कुछ समझना पड़ेगा, हमको भी कुछ समझना पड़ेगा उन लोगों से। लेकिन हमको इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अम, अ, अगली इसमें आप करना चाहेंगे कि या मैं इसको एक थोड़ा सा नो, ऐसे आई रियली फ्रॉम द डीआरए के एक्सपीरियंस के आधार पर, आप तो बहुत सारे काम किए हैं इसके बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो चलते था गांव वालों में, कुछ उसके बारे में बोल सकते हैं? यू से ड्राई एंड वेस्ट को सेपरेट करते हाँ हैं, जी। आजकल का प्रॉब्लम अलग ही बन गया है। विलेजेस में, गाँव में भी आजकल प्लास्टिक का प्रॉब्लम है। प्लास्टिक को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे मालूम है कि जब मंगलूर के एरिया में, सिटीज़ के एरिया में, वहाँ से थोड़ा दूर में विलेजेस का इकट्ठा करके a set of youngsters have come together to make it a social enterprise. एंड कुछ दिन के पहले कर्नाटक में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिए थे कि वो उनसे खरीदेंगे प्लास्टिक को और रोड साइड में यूज़ कर देंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज देयर इज आल्सो एन एंटरप्राइज इमर्जिंग, यूटिलिटीज आल्सो हैपनिंग, एटलीस्ट इन द विलेजेस दे आर रिकॉग्नाइजिंग दैट इस वेस्ट से कुछ हमें कुछ लाभ भी मिलेगा। And it's easy to mobilize communities in rural areas any day. And that enterprise actually, when I spoke to them last, profitably चल रहा है। So अभी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए हैं बहुत सारे जगह में, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स आर देयर। So from the DRA experience, how can today in different ways communities can engage in the practicalization of waste management? Because now with Swachhata Abhiyan, after the Prime Minister's focus on that, a lot of personal hygiene has improved, toilets are happening everywhere, closed drinking water systems have emerged. But we have a real big challenge of community waste management because we are generating, as economically as we progress, both community का waste भी बढ़ रहा है। तो कुछ इसके बारे में आपने डीआरआई में कुछ काम किए थे कुछ के एरिया में, उसके बारे में शेयर सम एक्सपीरियंसेस। नानाजी देशमुख ने जब डीआरआई को बनाया कि बिल्कुल कि हमको रूरल एरियाज में रूरल रिकंस्ट्रक्शन, सोशल रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करना है, उन्होंने 3-4 फ्रंट्स पर इकट्ठे काम करा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो इट शुड बी द कम्युनिटीज इनिशिएटिव एज वेल एज देयर पार्टिसिपेशन। उसके बिना काम नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने शुरू करा और वो एक हम ही करते रहेंगे। आप आइए, हमसे जहाँ मदद की ज़रूरत होती है। फिर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ करने की ज़रूरत कैसे पड़ी। हमारे यहाँ सोशल आर्किटेक्ट कपल्स का एक और इंस्टीट्यूशन है। वहाँ वो लोग गाँव में रहकर उन लोगों के साथ में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, फीडबैक देते हैं, फीडबैक लेते हैं, अपना इनपुट्स देते हैं। वेयरएवर वी नीड टू इंटरवीन और वेयरएवर वी हैव टू सीक इंटरवेंशन ऑफ द आउटसाइड एजेंसीज ऑल्सो, वी फैसिलिटेट दैट विद देम। तो उसमें से ये जो नई-नई चीज़ें आपने अभी बताई जो सोशल एंटरप्राइज़ेज़ वाली, ये पहले दूसरी चीज़ों के लिए तो होती ही थी। वो तो सोशल एंटरप्राइज़ वाज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ इकोनॉमिक टर्म्स में होता था। बट दीज़ न्यू चैलेंजेस हैव कम इन। अब यहाँ डीआरआई का एक रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डीआरआई हैज़ टू टेल और हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि समय-समय पर कुछ ना कुछ ऐसे फेयर्स या एग्ज़िबिशन्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम उन प्रोग्राम्स के ज़रिए उसमें से जब प्रधानमंत्री जी का जब से स्वच्छता अभियान आया है, इसको इसने तो हमको बहुत एक फ़िलिप दिया है, बहुत आसान किया है। प्रधानमंत्री जी के नाम पर हम जब लोग इकट्ठा करते हैं, नाना जी के नाम पर और नाना जी और प्रधानमंत्री जी का जो आपस के संबंध होते हैं, उनको लेकर एकदम से लोगों के मन में आती है, हाँ, 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 मुझे इसमें काम में जुटना है, करना है। तो आपने जैसा बताया कि क्या-क्या सोशल एंटरप्राइजिंग उसमें हो सकता है। तो बॉटल्स जो पेट बॉटल्स हैं, उनके अंदर प्लास्टिक भरना और उसको बिल्कुल इस तरीके से उसकी ब्रिक्स बना देना कि वो इतनी मजबूत हो जाती हैं उसकी ब्रिक्स की लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं अब छोटे-मोटे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। उन लोगों को लगने लगा है, उसमें डीआरआई जहाँ पे भी टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत होती है, कलेक्शन ऑफ बॉटल्स की ज़रूरत होती है, कलेक्शन ऑफ ये हमको जो प्लास्टिक की ज़रूरत होती है, जितना भी है, तो अपने क्योंकि एसएचजीस बहुत सारे हैं, गाँव-गाँव के लेवल पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी लेवल पर काम करते हैं वो लोग। उनको लगातार ये वाली सारी बातें बताई जाती रहती हैं।
जब ऐसा बताते हैं तो उन लोगों को हमेशा खुद को भी महसूस होने लगता है कि अरे ये हमारे को फैल रहा था, ये तो हमारे लिए दिक्कत हो रही है, इससे हमारा ड्रेन चोक हो रहा है, कैटल को भी जब कैटल खा जाते हैं तो उससे सबसे बड़ा उन लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उनके लिए थोड़ा सा हमारे लिए आसान होता है रादर कि उनको कहना और उनके एकदम से समझ में आ जाना। फिर दूसरी चीज ये है कि अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने वाली कि इंस्टेड ऑफ दोस कैरी बैग्स, चित्रकूट जैसी जगह या आप किसी भी गांव में जाएंगे वहां थोड़ा सा आसान है थैले देना, क्लॉथ बैग्स देना। क्लॉथ बैग्स तो दे कैन यूज भी होता है, अपने घर में बनाते हैं, सबके घर में स्विंग मशीन आ गई है, डीआरआई ने भी प्रोवाइड की, दूसरे संस्थाएं जो होती हैं जहाँ काम करती हैं वो भी करती हैं, तो इट हैज बिकम अगेन अ हाउस होल्ड थिंग। पहले भी होती थी, अब दोबारा लौट आई है। बीच में तो डिपेंडेंस बढ़ गई थी कि हम लोग हर चीज को कमर्शियल उस पर देखने, वो होता है। फिर उसको वॉश करने के लिए भी हम लोग उनको बिल्कुल कहते हैं कि आप इसको बैग को वॉश भी रेगुलरली करते रहिए, वरना ऐसा नहीं है कि गंदा होता चला जाए। ये सारी चीजों में करते करते जैसे हम लोग अभी नॉर्थ ईस्ट में भी गए, वहां पे भी हम लोगों ने काम करना शुरू करा। तो वहाँ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ ईस्ट में, इम्फाल में, उन लोगों को हमने रोपन करा। हमने उनको कहा कि देखिए टेक्निकल एक्सपर्टीज आपकी रहेगी, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में क्या क्या चीजें हैं, कौन सा फाइबर से कैसे होगा। व्हाट वी कैन टेल फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस विद यू, कि हम लोगों ने ऐसे उन सबको मोबिलाइज किया, ऐसे हमने उनको सेंसिटाइज किया, उसके बाद में वो इस तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से काम किया, क्योंकि डीआरआई के मॉडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेप्लिकेशन, कि इट्स नॉट दैट वी आर कन्फाइंड टू 4 or 5 सेंटर्स वेयर वी आर वर्किंग, वी हैव टू रेप्लिकेट दिस मॉडल ऑल्सो। सो नाउ वी हैव गॉन टू द फार ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। वहां पे हम लोगों ने कहा, तो उन लोगों ने अपने एसएचजीज के थ्रू वहां पे जूट बैग्स बनाए, या उन्होंने जो वहां का बड़े बड़े पेड़ इस किस्म के थे उनकी रूट्स में से, बैनियन ट्री की रूट्स में से बनाए। उन्होंने डिफरेंट फाइबर्स, उन्होंने सबसे जरूरी जो काम करा कि पाइनएप्पल इज ग्रोन देयर इन ह्यूज क्वांटिटीज, उसका फाइबर निकाल लिया, उसके प्लांट का जो वेस्ट होता था अदरवाइज, उसके उन्होंने बैग्स, और अब तो उन्होंने टेक्सटाइल्स भी बनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने लोटस सिस्टम का टेक्सटाइल बनाया, तो वो इतना एक्सपेंसिव हो गया कि स्मॉल स्कार्फ इज कॉस्टिंग 40,000 रुपीज एंड सेलिंग ब्रदर, ये सेलिंग फॉर 40,000 रुपीज नाउ, एंड पीपल आर वाइंग टू बाय दैट ऑल्सो। वो एक हो गया, बट उसमें से उसका जो रिसाइकलिंग है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ, उसको हम लोगों ने जहां जहां पे भी हम लोग कोशिश कर सकते थे, तो वेस्ट जो था ये वाला, अब वेस्ट पाइनएप्पल का जैसे प्लांट का वेस्ट था, अब पाइनएप्पल प्लांट का वेस्ट नॉर्मली तो वहीं पड़ा रह जाता था, या फिर उसको प्लोइन कर देते थे, वापस हो जाता था, वो भी अपने आप में एक लॉन्ग प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑल्सो, बट उसमें से और उसका मोनेटाइजेशन कैसे हो सकता है, तो हाउ कैन इट बिकम वेल्थ इन रियल टर्म्स, इमीडिएट टर्म्स, ऐसा करके लोगों को सिखाया, उन्हीं लोगों ने सिखाया। हमने तो बस जैसे ट्रिगर करने का एक काम किया कि आप वेस्ट को वेस्ट मत जाने दीजिएगा, वेस्ट को आप वेल्थ में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आप क्या करें। हमने देखा कि वो लोग तो गजब का, उनके हाथों में वो है, कुछ करने का हुनर है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उन सब चीजों को करने लगा। वहाँ के वाइस चांसलर ने उसको इतने अच्छे से प्रमोट किया, और उन्होंने उसको पूरा मिशन बना लिया कि अब उन्होंने कहा कि मैं डिफरेंट प्लांट्स के फाइबर्स को कुछ ना कुछ उसका वैल्यू एडिशन करते हैं वो, और वो इट्स रियली, द वेस्ट इज रियली टर्निंग इनटू वेल्थ। We can go and see for ourselves there what is that. I think these are the kind of examples where we can say our knowledge systems can be applied in a very modern context. We shouldn't think that all Indian knowledge systems are ancient और they are only for उस दिन के लिए relevant था, आजकल relevance नहीं होगा। शायद उसका application contextualize करेंगे तो बहुत ही relevant है आजकल भी। But I want to take you to another deeper question, because I know you do a lot of thinking on this aspect. See, one is on the physical space, but what about the intellectual hygiene? Even in our own communities, there are a lot of misinformation. One of the accusations made is they believe in taboos. इसको superstition बोल सकते हैं, या they can talk as blind beliefs बोल सकते हैं. लेकिन how do we I know Chitrakoot work has done a lot of work in promoting open-mindedness also. It is not a blind acceptance of everything in the past, but we do filtering it and practical application को आगे ले सकते हैं. उसके साथ साथ how do you
promote this open-mindedness? How do you actually get that intellectual hygiene also? And if you can share some examples in that. यस इफेक्ट हमने उस पे काम जो किया है अगेन इन अ वेरी सटल मैनर, कैसे कि नाना जी ने वहाँ एक राम दर्शन बनाया. राम दर्शन इज अ म्यूजियम पे, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं राम को भगवान के तौर पे प्रस्तुत नहीं करूंगा, मैं वहां पुरुषोत्तम राम के तौर पर उनको प्रस्तुत करूंगा. तो उन्होंने उसके स्पिरिचुअल पार्ट से ज्यादा वहां उन्होंने सोशल एस्पेक्ट पर काम करना. और उनकी जो राम की जो टीचिंग्स थी, जो राम ने टीचिंग्स को एज सच करके नहीं दिया था कि वो टीचर एंड द टॉट वाले उस तरीके से नहीं करा उसका था. जीवन भी एक जो मैसेज उनका था. जीवन जो था वही उस संदेश. संदेश करके सब लोगों के बीच में वो करने की कोशिश करी. उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज किस तरीके से हम लोगों ने लिया, जिसको डॉक्टर कलाम व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट ही विजिटेड चित्रकूट, और उन्होंने उसको देखा, और देखने के बाद पूरे कंट्री वाइड में ही बिकेम अ एम्बेसडर ऑफ डीआरआई मॉडल एंड नाना जी इन पर्टिकुलर. उसमें हुआ कि सिंस वी वर्क ऑन 5 zeros, one is zero poverty, zero unemployment, zero disease, zero illiteracy and zero conflict. जीरो कॉन्फ्लिक्ट, जीरो डिस्प्यूट, वो एक जो अपना पर्सनल हाइजीन का एक इशू होता था, वो कैसे आप जो कहना चाह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल हाइजीन, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी. वो सभी रूरल एरियाज में रहती थी. और वो ऐसा है कि पहले की चीजें अलग थी, लेकिन अब जब से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत हुआ, लैंड होल्डिंग्स कम कम जा रही हैं, और वो फैमिली में डिवीजन, फ्रेगमेंटेशन भी ज्यादा हो जाता है. फ्रेगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा हो गया. तो बहुत सारे उसमें से मुकदमे और ये सब चीजें, आपस में झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट खूब ज्यादा हो रहा था सोसाइटी में. उसमें पहले पिछले 200 साल में उसको कभी स्टेम करने की कोशिश भी नहीं हुई, रादर उसको एग्जैजरेट किया गया कि अच्छा ठीक है ठीक है, एक्सेंचुएट रादर किया गया कि करो, मतलब होने दिया जाए सर, सो दैट फ्रेगमेंटेशन ज्यादा बढ़ जाए. नाना जी ने कहा कि नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विथ क्लींजिंग वंस माइंड्स एंड. हम लोग क्योंकि बॉडी माइंड सोल की बात जब करते हैं, इंटेलेक्ट की बात करते हैं कि इसका बैलेंस करना है, तो उसमें इंटेलेक्ट भी है, सोल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो क्लींजिंग ऑफ सोल उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ. स्पिरिचुअल हाइजीन दैट वी टॉक. स्पिरिचुअल हाइजीन है, तो उसके लिए लोगों को वहां लाकर, तो चित्रकूट इज वन एरिया जहां एवरी अमावस्या एटलीस्ट 1 to 2 lakh पीपल वुड कम. एंड सोमवती अमावस्या पे तो 10 लाख तक होता है. दिवाली वाला जो अमावस्या आती है, तो इट गोस अप टू 40-50 लाख ऑफ पीपल विल बी विजिटिंग दैट एरिया, क्योंकि रामचंद्र जी का वनवास फॉर 14 ईयर्स में से 11.5 years इज स्पेंट देयर इन दैट हिलॉक, जो है कामतगिरी की परिक्रमा भी होती है वहां. उसमें कर उन लोगों को समझाना आसान हुआ. हर चीज को कोरिलेट किया गया कि भगवान राम की टीचिंग्स के साथ. और हम लोग जैसे मेरे इसमें आया है भगवान राम, वहां हम राम की टीचिंग्स के साथ में. नाना जी ने तो कहा कि वनवासी राम, क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया जो था वो उस समय ट्राइबल था. अब भी एक ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ काफी प्रीडोमिनेंट है. उन लोगों के मन में ये बात जो है धीरे धीरे इंटरनलाइज करते गए, इनग्रेन होती गई कि हाँ, हमको राम के आदर्शों पे चलना है. तो हमारा उसमें से आउट ऑफ 108 विलेजेस में से 80 तो उस समय हो गए थे जब प्रेसिडेंट कलाम गए थे 2005 में. वो विवाद मुक्त हो गए थे गांव. उन्होंने कहा मैं दोबारा आऊंगा एक शर्त पे, कि मुझे सारे गांव जो चाहिए कॉन्फ्लिक्ट फ्री चाहिए. सो ही गेव कि अच्छा ऐसा करो, आप 5 साल में करो. नाना जी ने कहा कि नहीं, हम इसको जल्दी से करते हैं. विद इन 3 years all the civil suits were withdrawn from the areas, surrounding areas में से सारे कर दिए. Then he came there. अभी at that time he wasn't president, but he came to Chitrakoot and he said कि I'm so happy to see कि क्या कैसा हो है, लोगों के मन में किस तरीके की भावना आई है. तो वो जो Such a huge social revolution. सोशल रिवोल्यूशन वो इस तरीके से आई. तो वो नाना जी ने भगवान राम का और ये सब फैक्टर्स में लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोगों को भी वी मस्ट गिव क्रेडिट टू देम ऑल्सो, कि उनके मन में धीरे धीरे ऐसी एक भावना बनती चली गई है. और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा है कि जो हमारे सोशल आर्किटेक्ट कपल्स हैं जो उन लोगों के बीच में जाते हैं,
वो इन सब चीज़ों पे लगातार उनके साथ में कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। दे एंगेज देम इन सम काइंड्स ऑफ डायलॉग्स, सुनते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी बात कम होती है बल्कि दे ऑलवेज लिसन टू देम। उनको फिर किस तरीके के कहाँ इंटरवेंशन, किस तरीके की ज़रूरतें चाहिए होती हैं, उनकी इकोनॉमिक नीड्स हैं, उनको फाइनेंशियल नीड्स हैं, और उस सब चीज़ों को फुलफिल करना, इट बिकम्स अ वेरी होलिस्टिक थिंग। उसको किसी चीज़ में हम आइसोलेशन में रख कर देखेंगे तो काम नहीं बनता है। दैट्स व्हाई नानाजी ऑलवेज सेड कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, उसी को हमको वहाँ वैलिडेट करना है ग्राउंड पर। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में सारे एस्पेक्ट्स ऑफ कुछ चीज़ ह्यूमन लाइफ आती हैं। सो उसमें से बॉडी, माइंड, सोल, इंटेलेक्ट, इन चारों चीज़ों पे काम करना है। तो हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर भी पूरा काम करना है। तो अर्थ उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, काम उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों पे धर्म की एक सत्ता पीछे रहनी चाहिए, और हम मोक्ष उसमें प्राप्त करेंगे। ऐसा करके उन्होंने इसको पूरे को ब्यूटीफुल, क्योंकि इस पुरुषार्थ के आधार पर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली डिक्लेरेशन किए थे फॉर पीस, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। Essentially, it is this capture of integral humanism, and the whole world can learn from us. So I think that's the beauty of Indian knowledge systems. जो it is so locally relevant. शायद चित्रकूट के एरिया में we can exploit the emotional attachment to Ram, but Ram is a national symbol. So in different ways we can draw messages. हर एक जगह में उन local icons भी होते हैं, उसके आधार, जीवन के आधार पर we can do a lot of such messaging. Lot of work I think in Chitrakoot is also done on emotional health, on mental health, and how, there's so much of work on mental health which is also integral to what you're talking. It's a combination, you can't really separate, fragmentation नहीं कर पाएंगे. This integral concept जो बोलते हैं, the foundation itself is Bharatiya Gyan, the way you explained it. I still remember well the conversation that when you read in Valmiki Ramayana, the way he describes it so beautifully when Bharat goes to Ram and says, "Come back," and asks all his Paduka to represent him. That dialogue of what should be governance and how should Bharat rule the that is the real Ram Rajya we should talk about, right? The entire governance structure आजकल भी बहुत रेलेवेंट है. हम सोचते हैं कि इस रामायण एक कहानी है, एक कथा है, लेकिन वी कैन एक्सट्रैक्ट द मैसेज एंड उसका संदेश तो आज भी दी सकते हैं. हमारे आजकल कॉन्टेक्चुअल गवर्नेंस में भी ले सकते हैं. कर्मयोगी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क वही है. We have drawn the inspiration from all this messaging. So for me, you spoken about water management, you spoke about watershed, desilting, courtyard cleaning, composting. But for me, as a model across the nation, in different aspects of life, whether it is gender, whether it is health and hygiene, how can that messaging of development itself come from these kind of activities where hygiene is not just physical, it's also, we spoke about it as emotional. So there's so much of civilizational wisdom embedded in the integrative approach to it. But आजकल तो डेवलपमेंट मैसेजिंग में हम सिर्फ जीडीपी के बारे में सोचते हैं. वी थिंक अर्निंग मोर इज इम्पोर्टेंट, सो वी हैव टू कनेक्ट इट टू दैट. लाइक यू सेड, अर्थ भी इम्पोर्टेंट है. कैन यू एलाबोरेट अ लिटिल मोर ऑन दैट? हाउ कैन कम्युनिटीज एक्चुअली टेक दिस फॉरवर्ड, and what are the lessons our government officers can learn from what we discussed in embedding it in a different programs? तो आजकल तो प्रोग्रामेटिक अप्रोच भी आवश्यक बहुत ही है, बिकॉज वी हैव टू रीच द एंटायर नेशन, एवरी लास्ट मैन, अंत्योदय में वी शुड वर्क. So we need to take a pragmatic approach, but how the paradigms can be drawn from these kind of experiments, a few words, and possibly that would be the messaging I would like all of us to carry back. Maybe a last question for her, because we've been discussing a lot. देखिए, आपने जो उसमें जितना भी बताया और मैंने जो से बात करी, हम क्योंकि हर चीज़ को एक बहुत होलिस्टिक मैनर में देखते हैं, हम कहीं भी बिल्कुल आइसोलेटेड अप्रोच के साथ काम नहीं करते हैं. एवरीथिंग इज इंटरवोवन विद ईच. मिशन कर्मयोगी में भी हम डिसाइलोइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें. वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और फॉर्चुनेटली हमको प्राइम मिनिस्टर ऐसे मिले हैं कि जो इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से जानते. सोचते. उन्होंने जब से मन की बात करनी शुरू करी, मन की बात ने हम लोगों के लिए काम बहुत आसान किया. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए हम लोगों को वहाँ बैठाते हैं सबको. डीआरआई में इस तरीके की एक्टिविटी होती है, हम उसको समय समय पर ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग जगहों पर. सिंस वी आर वर्किंग इन 512 हैबिटेशंस हैं, वो 108 क्लस्टर्स बनते हैं, विलेज क्लस्टर्स. उनमें हमारा बिल्कुल रेगुलर एक चलता है कि अब हमको यहाँ जाकर काम करना है.
और जो उसमें हम अन्य, जैसे मैंने कहा कि आपको कि भगवान राम का कितना इम्पोर्टेंट वो पूरा रहा, 11.5 years स्पेंड दिया। कल जैसे 31st जुलाई को तुलसी जयंती है। तुलसीदास जी ने वहीं चित्रकूट में बैठकर ही रामायण की रचना की थी। उन्होंने जब किया तो कल हमारे यहाँ बहुत बड़े स्तर पर हम उसको मनाने जा रहे हैं। उनकी एक स्टैचू DRI के प्रेमिसेस में तुलसीदास जी की वहां पर हम लोग लगा रहे हैं अपने प्रयासों से। इन सब को करने का एक कारण होता है। ऐसे ही हमने वहां रानी दुर्गावती की लगाई। वो उस एरिया का जो सबसे बड़ी रानी, ट्राइबल महारानी थी। उनके जरिए लोगों की एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है। दो चीजें ऐसी हैं, रानी दुर्गावती से बनती है ट्राइबल्स की। बाकी लोगों की, मैं नॉन ट्राइबल और ट्राइबल के बीच में कोई वो नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर बाकी लोगों का तुलसीदास जी के साथ में इतना वो है, क्योंकि चित्रकूट के घाट पर वो भय संतन की भीड़ वाला सब लोगों को याद रहता है कि तुलसीदास ने यहीं बैठ के रामायण रची। उनको हमेशा लगता है कि तुलसीदास जी से क्या। अब वो वहां पर इस तरीके के वो बने हुए हैं छोटी छोटी दूरी पर, जो एक परिक्रमा होती है, वो कामतगिरी जहाँ पे भगवान राम रहे फॉर 11.5 years स्पेंट। वहाँ की हर चीज को किस तरीके से हम कोरिलेट करते हैं कि ये आपके जीवन से कैसे कैसे जुड़ी हुई है। उसमें से जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, हर्ब्स का है, तो हर्ब्स किस तरीके से जुड़ी हुई हैं वहां पर। वहां सैनिटेशन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कैसे होती थी। अब हम पुरानी चीजों में वो ओपन डेफिकेशन वगैरह को हम लोग बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं। दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या करा, उसमें सबसे पहले सरकारी स्कीम्स को इंटीग्रेट करने के लिए अपना सारा काम शुरू करवाया कि ठीक है, टॉयलेट्स का काम में है, हम आपके साथ में मदद करेंगे। तो एज इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द रूरल पॉपुलेशन, वो हम लोगों ने सबसे पहले उस तरीके का काम लिया। अब भी जिन जिन चीजों में जरूरत होती है तो हम अपने ही रेवेन्यू कैंप्स लगवाते हैं। DRI विल ऑर्गेनाइज कैंप्स इन ईच क्लस्टर। वहाँ सभी गवर्नमेंट ऑफिस को, डिपार्टमेंट्स को बुलाकर वहाँ कहते हैं आप यहाँ आके बैठिए, सबकी प्रॉब्लम्स को अक्रॉस द टेबल हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। जन सुनवाई बोलते हैं ना। एग्जैक्टली। वो जन सुनवाई जो होती थी वो पहले सरकारी स्तर पर होती थी। ये तो कम्युनिटी अभी कम्युनिटी अप्रोच, और उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? DRI तो नाम हो गया, वहां की गांव वालों को कहा ग्राम सभा आप करो, हम आपको कुछ साथ में रहेंगे। जगह रहेंगे, हम आपको लिए स्कूल खाली करना, सब सुविधाएं बढ़ाना, डॉक्टर्स लेकर आना, वहाँ कैंप भी लगाना, वहाँ लोगों के भोजन की भी व्यवस्था कर लेना, वो भी कम्युनिटी के उससे करना। तो कम्युनिटी से कहते हैं कि यू गिव अस सम मनी, आप हमको पैसे दीजिए, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे, जो कुछ कम होगा वो हम अपने जेब से लगा देंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इतना अच्छा महसूस करते हैं सब ये सब काम करने में, उनको लगता है कि हाँ, हमारे लिए कितनी चीजें आसान होती चली जा रही हैं। ये जो क्लिनजिंग है ना, ये सब फिर उसमें फोक सॉन्ग्स चलते रहते हैं, साथ में कुछ ना कुछ वहीं की महिलाएं जो हैं बैठकर गाना भी गा देंगी, खाना भी बनाते हुए जब पूड़ी बेल रही होती हैं तो वो गाना सुनाती रहती हैं, कुछ ना कुछ गीत गाती रहती हैं। इंटीग्रल है वो रूरल लाइफ, उसमें से वो कुछ ना कुछ नॉलेज देती रहती हैं कि क्या मैसेजिंग भी होता है। बहुत मैसेजिंग है बहुत। सो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को किस तरीके से नॉलेज ट्रांसफर करना है, किस किस चीज का करना है, ये सारे के सारे किस चीजें जो आती रहती हैं, ये कल्चरल प्रैक्टिस से आती हैं। नाना जी ने वहां पर एक दो चीजों पर विशेष एम्फेसिस था, उनका बहुत स्पेशल एम्फेसिस था कि ये जो हम कल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्चरल हैबिट्स और ये सब चीजों की बात करते हैं, दिस शुड इम्ब्यू इन दोज पीपल। कैसे हो वो? तो उन्होंने कहा कि देखो, इसको जरूरी नहीं है कि दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। ये हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से ही प्रैक्टिस बन सकती है। ये एक्स्ट्रा करिकुलर प्रैक्टिसेस हो जाए, नॉट इन द करिकुलम नेसेसरी। करिकुलम को लेकर थोड़े से लोगों के दिमाग में रहता है फिर पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम के लिए करना के लिए पढ़ना है। यहाँ एग्जाम नहीं, आपका रोजाना एग्जाम है। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो इंटरेस्ट के साथ में कोई भी आदमी काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं हर चीज को एक इंटरेस्टिंग मैनर में करें, सो दैट पीपल गेट इन्वॉल्व इन ऑल आर एक्टिविटीज। उसमें उनको फिर गीत संगीत, उनके रिचुअल्स में, अब जैसे है पूरे चित्रकूट एरिया में 21 लाख दीपक इस बार जलाए गए।
DRI के इनिशिएटिव पर 21 लाख रामनवमी पर, पिछले साल 11 लाख थी संख्या, उससे पहले 5 लाख थी। दिस ईयर वी हैव रीच्ड अ नंबर ऑफ 21 lakhs, इज सच अ ह्यूज। किसने करे? DRI अकेले तो 21,000 कर लेगा एट द मोस्ट। सब लोगों ने करे, हमने उनको मोबिलाइज किया। क्यों करे? कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए। उस दिए को बनाने में जो वाटर को पैसा Economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके लिए तेल बनाने में, उसके लिए बत्ती बनाने में, उसका सब कुछ करने में, फिर सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाना, सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाना, पूरा कम्युनिटी लग जाती है वहाँ पर उस तरीके से काम करने की। तो ये जो कम्युनिटी फीलिंग इस तरीके की आती है, मंदाकिनी रिवर है वहाँ, उसकी सफाई हम लोगों ने की। वी स्टार्टेड डूइंग इट, देन द एंटायर सिटी जॉइंड अस एट डिफरेंट प्लेसेस, आकर करने लग गए वहाँ पर कर कि ठीक है हम करते हैं। फिर वो जो वो है गाजर घास, कांग्रेस ग्रास, उसको हटाना है, तो सारे के सारे हटाने में सब लग गए। वी स्टार्टेड इट, वी टुक द इनिशिएटिव, वी स्टिल आर देयर, वी वर्क देयर। हमारे वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उसमें से जो अच्छे बड़े फंक्शनरीज हैं वो भी वहाँ जाकर काम करते हैं। जब करते हैं तो फिर सबको लगता है अरे हमें भी करना चाहिए, हमें भी करना। तो एक क्लीनिंग फिजिकल भी होती है, मेंटल भी होती है, इंटेलेक्चुअल भी होती है और इमोशनल भी होती है, And social cultural. सोशल सारा का सारा बस। Excellent, Atulji. I think the conversation was wonderful. And you. thank you for sharing all this knowledge. At Mission Karmyogi, what we really hope to achieve is the Char Sankalps, Vikas and development from the understanding of the Indian perspective. Garv, we can take so much of pride in our civilizational practices, in our knowledge systems, in our languages, in what looks like just a cultural practice is so embedded with science also in that. Then we would like to share all these messages to feel that we are one country. Ekta is a very important thing for us. And then there's a responsibility for us. Kartavya bhi bahut important hai. All of us have a responsibility to building a Vikasit Bharat. And as government employees, I'm sure you will appreciate that it is not just the government's responsibility to undertake development. It has to be a community mobilized activity, a movement for all this. And there's so much of message, even in a simple thing like hygiene. It has a simple thing like the integral concepts of how do you look at development. And all this is something that for us, every activity, every learning activity that we undertake in Mission Karmyogi, we feel that it should be relatable to us, it should be relevant to us, and we should be able to apply it immediately. There's so much that we discuss which our civil servants can learn from and embed it in our different programs across the nation. And I think that is the way the real Vikasit Bharat will emerge. So thank you so much for sharing your wisdom and knowledge and experience with us. And it was wonderful being Thank you here. so much. Namaste. I have wondered. Thank you. Namaskar.